کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے. وہی پرپس ایگل چینل کا پرپس کہ ہر ایک شخص توبہ کرے اور بائبل مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے. تو میرے عزیزوں، میں آپ کا ہوسٹ خرم دانش آج پھر سے آپ کی خدمت میں اپنی ساری ٹیم اور ہماری ٹیم کی ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور میرے عزیزوں، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو پرسنالٹی آئی ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاسٹر ایزک محمود گھوری. سر ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو. اور آپ ابھی اپنی خدمت کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں. سو میں ایگل چینلز کے تمام اس ٹیم کے ممبرانز کو اور اس کے آنر کو بلکہ اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور افیکشن، فار یور لو. آپ نے مجھے یہاں پہ اس خدمت کے لیے بلایا ہے. سو میں خدا کا خادم being pastors as Soul Winning for Christ Ministry International میں پاسمان کی خدمت کر رہا ہوں. جی خدا ان کا شکر ہے جی بردر. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھ چیز کو ایک ٹیچنگ کا بھی ایک توڑا دیا جہاں پہ میں جارڈن بائبل کالج میں بچوں کو ٹیچ کرتا ہوں، بائبل اسٹڈی کراتا ہوں. اور ابھی ہم آپ سے جانیں گے کہ اس روحانی سفر میں آپ کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. خدا کے فضل سے مجھے ان مشکلات کا یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کرتے ہیں آپ پاسٹر کے بیٹے ہو، آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہو. تو اس لیے مجھے کبھی شرم نہیں محسوس ہوتی کیونکہ یہ میری بہتری کے لیے تھا. اگر لوگ مجھے ٹیچ کرتے تھے اس میں مجھے سیکھنے میں کچھ ملتا تھا. خدا ان کا شکر ہے کہ آج ان لوگوں کی باتوں سے میں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں اور میں نے بائبل کالج کو دوبارہ پھر سے جوائن کیا، بلکہ سیمنری کی اور سیکھا. اور بائبل مقدس بھی ہمیں کہتی ہے کہ اپنے بچے کی چھڑی سے تربیت کر. تو آپ ہمارے ویورز کو روحانی سفر کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم بہت سے ایسے خادم ہیں جو نئے اٹھتے ہیں لیکن وہ مشکلوں سے، پریشانیوں سے پھر بیٹھ جاتے ہیں. جی بردرز، میں آپ کو ایک خوشی کی بڑی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کلام پر توجہ کرنے والا بھلائی دیکھے گا. انسال کی کتاب جس کو حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لڑکے کی سراہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے. اس میں فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں افسس کی کلیسیا کو پولس رسول لکھتے ہیں، اے فرزندو خدا نے اپنے ماں باپ کے تابع دارو. اگر اس کے چھٹے باپ کو ریڈ کریں تو وہاں پہ اگر سیکنڈ حصہ پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے اے اولاد والو تم اپنے بچوں کو خداوند کی طرف سے تربیت نصیحت دے کر ان کی پرورش. لاسٹ ٹائم پاسٹر شباز تھے ہمارے ساتھ اور انہوں نے بڑا زبردست ہمیں جواب دیا. اور اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی بائبل کی آیت ہے کہ آپ جب بے دل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہ بائبل کی آیت قوت دیتی ہے، بوسٹ کرتی ہے اور آپ پھر خدمت میں. جی بردرز، اگر ہم دیکھیں یشوع کی کتاب پہلا باب بردرز کی 8ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. کیونکہ خدا کا کلام جب ہم ڈسکرج ہوتے ہیں، جب ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں تو خدا یشوع کو کہتا ہے کیا میں نے تجھے حکم نہ دیا سو مضبوط ہو جا. کبھی کبھی یہ پریشانیاں ہمیں مایوس کرتی ہیں، کبھی ڈس اپوائنٹڈ کرتی ہیں، لیکن خدا کا روح یشوع کو کہتا ہے اٹھ سو مضبوط ہو جا، جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. آج یہ وعدہ یشوع کے ساتھ نہیں، ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی جو خدا کی بات کو سنتا ہے اس کے ساتھ. کہ ایسی کون سی شخصیت جو آپ کو بائبل کے لحاظ سے پسند ہے؟ جی بردرز، میں سب سے زیادہ لائک کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کو، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے کلام مقدس میں بڑی خوشحال بات لکھی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. آج بہت سارے خادم ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے بھائی ہیں کہ
खिदमत करते, लेकिन अगर आज मूसा को कलमतुल्लाह कहा गया है, एलिया को कहा गया कि किसके कहने से, दुआ करने से बारिश होती है, अगर दाऊद के बारे में देखें तो खुदा कहता है ये मेरी पसंद का बंदा है, लेकिन किसी के बारे में ये अल्फाज नहीं लिखे। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक मॉडल है, एक नमूना है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। यीशु मसीह बातों को बर्दाश्त करते थे, यीशु मसीह लोगों की बातों को सुन के उनको ऑपोजिट नहीं बल्कि मोहब्बत से जवाब देते थे। तो व्यूअर्स, जो पास्टर साहब ने हमें जवाब दिया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज बहुत से पास्टर हैं जो नाम के पास्टर हैं और कहते हैं यीशु मसीह जैसा मिजाज नहीं, और वो कहते हैं, कई पास्टर साहब को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मैं पास्टर भी हाँ तो मैं बदमाश भी बड़ा, लेकिन ये पास्टर नहीं। तो व्यूअर्स, पास्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमें ऐसा मिजाज रखना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। तो आप हमारे व्यूअर्स को अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने इस रूहानी सफर को बेहतर कर सकें? व्यूअर्स, मैं आप सबको एक बीइंग खुदा का खादम, पास्टर्स, एक अच्छा मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी रूहानी सफर का लाइफस्टाइल अगर दुनियादारों जैसे लोगों जैसा है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मॉडल नमूना बनाएं। यीशु मसीह को अगर पढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह को अगर पाना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमारे लिए एक ऑथेंटिक, एक प्रूफ के तौर पर सबसे बड़ा जवाब है। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने, अगर यीशु मसीह की दाढ़ी को भी नोचा गया है, यीशु मसीह के मुंह पर भी थूका गया है, यीशु मसीह ने कहा है बाप इनको माफ कर। आज पास्टर्स को कोई ब्रदर बात करता है तो पास्टर कहते हैं जी मैं पास्टर भी यहाँ तो मैं ये बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत बात है, यीशु मसीह पतरस के खत में लिखते हैं वो गालियां सुनकर भी गाली ना देता। हमारे बहुत से व्यूअर हमें सवाल करते हैं और हमारे प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी आती है हम उनसे जवाबात लेकर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारे व्यूअर्स का सवाल है कि पाक रूह का बपतिस्मा और उसकी अहमियत हमारे लिए क्या है? जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पाक रूह का बपतिस्मा और इसकी अहमियत क्या है। आज मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हम बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस करते हैं, आज बहुत सारे बहन भाइयों को इस चीज का मकसद का नहीं पता। ये 3 तसलीस के कानून हैं, ये 3 चीजें हैं। आज ये 3 खुदा नहीं है बल्कि ये तीनों एक ही हैं। आज अगर जब हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो अजीज बहनों भाइयों, इमाल की किताब में लिखा है कि पतरस से वो लोग पूछते हैं अब हम क्या करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ईद सौद जब हम मनाते हैं, उस वक्त भी यीशु मसीह अपनी डिसाइपल को कह कर गए थे तुम आलमे बाला खाना में ठहरे रहना। अजीज बहनों भाइयों, अगर हम देखें ये पाक रूह का बपतिस्मा क्या है, ये पाक रूह का बपतिस्मा आज हमारी रूहानी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज हम इसको कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे नंबर 1 फर्स्ट ये आपकी जिंदगी पर है। रूहुल कुद्दुस कभी किसी पढ़े लिखे की नहीं, कभी अनएजुकेटेड की जिंदगी में नहीं, बल्कि आज रूहुल कुद्दुस उन जिंदगियों में उनको मिलता है और वो हासिल कर सकते हैं जिनकी रूहानी तौर पर जिंदगी पाक है। आज हम ज़बूर 141 में गाते हैं दिल ना होवे मेरा बदीते माया। सो अजीज बहनों भाइयों, आज जिनके दिल पाक हैं, जिनके दिल साफ हैं, रूहुल कुद्दुस उनको मिलता है। ये कैसे मिलता है? जब हमारी दुआया जिंदगी बेहतर होगी, जब हम ज्यादा दुआ करेंगे, जब हम ज्यादा खुदा से बातचीत रफाकत में ठहरेंगे और दुआ रोजे में ठहरेंगे। और पाक रूह का बपतिस्मा रूहुल कुद्दुस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही शागिर्दों को आलमे बाला खाना में ठहरे रहे, जब रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा तो पाक कलाम में लिखा है आग से शोला से भरी हुई फटती ज़बानें उन पर आ ठहरी और खुदा ने उनको वो कुदरत, वो ताकत, वो मैं समझता हूँ खुदा की जो प्रेजेंस उन पर छा गई थी, जो उनको मिली थी उस रूहुल कुद्दुस के बपतिस्मा के वसीला से। जब रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा मिल जाता है तो हमारे अंदर इनकरेजमेंट आ जाती है, दिलेरी आ जाती है। देखिए, अगर शागिर्द पाक रूह के बपतिस्मा के बगैर डरे हुए थे, जब उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला तो आज ये शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए। आज
मेरे बहन भाइयों, हम सब के लिए पाक रूह का बपतिस्मा मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि पाक रूह के बपतिस्मा की मैं प्रेफरेंस बताना चाहता हूँ। जो खादम हजरात सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर पाक रूह के बगैर आप खिदमत करते हैं तो आपकी खिदमत मौसम नहीं है। पाक रूह हमें बर वक्त भूली हुई बातें याद कराता है। कभी कभी कलीसिया के लोग कहते हैं, पास्टर साहब आज सरमन बड़ा अच्छा था, मैसेज बहुत अच्छा था। जो पास्टर्स जो रूहुल कुद्दुस से ममूर है, मैं समझता हूं उनका सरमन, उनका मैसेज कलीसिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। पाक रूह आज उन लोगों को मिलता है जिनकी जिंदगी में खुदा काम करता है, जो दुआया जिंदगी जिनकी बेहतर है, जो अपना फोकस खुदा यीशु मसीह पर और बाइबल पर, उन बातों पर रखते हैं। पाक रूह का बपतिस्मा है क्या है? आज तसलीस का ये तीसरा कानून अगर हम देखें अजीज बहनों भाइयों, बाप पैदाइश की किताब पढ़े तो लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, वही खुदा की रूह जो मुजस्सम होकर यीशु की शक्ल में आई। क्या आज यीशु का दौर खत्म हो गया है? बाप बेटे को भेजता है और बेटा रूहुल कुद्दुस को, क्योंकि यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, मैं जाता हूँ बाप के पास और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार, सेकंड कंपेनियन। आज जब हम वरीड होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, तो रूहुल कुद्दुस आज हमारे अंदर सरायत करता है। रूहुल कुद्दुस आज हमारे अंदर आता है और वो हमें दलेरी देता है। रूहुल कुद्दुस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से खुदा नाम सबको आज इस ईगल चैनल के थ्रू जो सरमन सुन रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, आपने तौबा किया, अजीज बहनों भाइयों, आज हमें रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा हासिल करने की जरूरत है। और मेरी गुजारिश है, रूहुल कुद्दुस के बगैर हमारी खिदमत फलाप है। जब आप रूहुल कुद्दुस से ममूर हो जाएंगे तो खुदा का रूह आपको दलेरी देगा, खुदा का रूह आपको अक्ल दनाई से रूह से ममूर कर देगा। आपका सरमन, आपका दुआ करने का स्टाइल, आपका अपने बैठने का स्टाइल, अजीज बहनों भाइयों, बाइस से बरकत होगा। खुदा ने आपको बरकत। अभी हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के खादिम का कि उन्होंने अपने बड़े कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। तो मेरे अजीजों, आज के इस प्रोग्राम के वसीले आपने ढेरों बरकत पाई होगी, ये मेरा ईमान है। तो अजीजों, आप इस खिदमत में हमारी टीम का साथ दे सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवालात हम तक आप पहुंचा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर के जरिए। तो हम आपके जवाबात नेक्स्ट खादिम से, खुदा के बंदा से आप तक बाइबल के लिहाज से अच्छे जवाब लेकर आएंगे। तो मेरे अजीजों, आप सबकी सलामती हो। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम के सिला से आप